Pranam. Good morning, all of you. Now, today we are going to start a standard 9 subject drawing, second chapter drawing elements, art interpretation. Culture is the mirror of your lifestyle. Art is the unique part of the culture. Human culture in early days was related to religion. Art was also influenced by the religion. Art and culture is an इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो स्टूडेंट्स, संस्कृति जो होती है वो अपनी जीवन शैली का एक आईना है। कला संस्कृति का एक अनोखा अंग है। मानव संस्कृति के आरंभ में जो थी वो धर्म प्रधान थी। कला के ऊपर भी धर्म की असर थी। कला और संस्कृति के समन्वय से ही मानव जीवन एक खुशनुमा बन चुका है। द वर्ड आर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड welfare. The original English word art is derived from Latin word ars. It means to obtain, become educated, or to vanish. Art, sculpture, music, and literature is considered as a subject of fine arts. Art and craft is also known as a beautiful picture art. You can calculate the beautiful picture with your eyes. The goal of art is to awake the root of human heart, which simulates, animates, and expresses elements of a nature. Art and beauty are correlated in spite of being different. The main purpose of art by beautiful construction makes us supernatural and emotionally happy. तो स्टूडेंट्स, ये जो कला का जो शब्द है वो संस्कृत शब्द कल धातु से आया है। उसका अर्थ होता है कुछ जानना, कुछ पाना या कुछ सीखना, ऐसा होता है। अंग्रेजी शब्द जो है आर्ट, अंग्रेजी शब्द जो आर्ट है उसका मूल लैटिन शब्द ARS था। उसका अर्थ हो रहा है, उसका अर्थ जो है वो है कुछ पाना, कुछ सीखना या तो कुछ मतलब मिलना, ऐसा कुछ होता है। चित्र, शिल्प, संगीत, स्थापत्य और साहित्य, उसकी जो सब मतलब है जो आर्ट्स की लाइन में आते हैं वो ललित कलाओं में उनकी इंक्लूड हुआ है, मतलब उनका उसमें समावेश होता है। चित्र और शिल्प जो है वो रूपप्रत कला मानी जाती है। रूपप्रत यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से, दृष्टि से देख सकते हैं। कला का ध्येय होता है प्रकृति का जड़ और चेतन तत्व का अनुकरण कर कर मानवी के हृदय तक उनकी उर्मियों को जगाना, उनकी उर्मियों को जागृत कर अभिव्यक्ति करने का होता है। कला और सौंदर्य भिन्न होने के बावजूद वो एकाकार है। कला का मुख्य उद्देश्य होता है सौंदर्य निर्माण के द्वारा अलौकिक और भावात्मक आनंद देना। कलाकार और कला को आस्वाद लेकर दोनों को कला आनंद देती है। ललित का अर्थ होता है सुंदर, इसीलिए ललित कला सौंदर्य विहार कराने वाली कला कही गई है। तो स्टूडेंट्स, अपने आप देखते हैं। इट डिलाइट्स अवर हार्ट वाइल पेंटिंग। God has created a vision about art in the universe, about unique picture elements in the creation of art. Kids have lots of pleasure while doing art. Some kids can't speak, but when broken color is given, they can express themselves by drawing a straight sand, sleeping lines, by drawing a circles which glitter different shapes of art. All these shapes are drawn on their own by doing their own creation of drawing. They are too happy. The main purpose for given kids art education is to increase their creativity, observation and visualization. They are free to think in their own way and express their feelings through art by thinking and creativity process and can make and learn beautiful pictures. They also get a mental satisfaction by doing this. In today's modern mechanical life child art education, it gives a freedom to do art in their own way. They learn an important lesson by thinking process. They understand in their own about the likes and dislikes to give a good knowledge of beautiful and creative art colors.
shapes and point. To beautify your drawing, it is very important to color what is being drawn. It delights our heart while painting means कि जो चित्त यानी मन जो होता है उसको आनंद देने वाली जो होती है वो होती है चित्रकला. God has created vision about art in the universe about unique picture elements in the creation of art. मीन्स कि ईश्वर ने जो सृष्टि का सर्जन किया है उस सृष्टि के चित्रकार के चित्र सर्जन में कला के जो मूल तत्व हैं उसमें रेखा और रंग का महत्व अनन्य है. किड्स हैव लॉट्स ऑफ प्लेजर वाइल डूइंग आर्ट. बच्चा जो होता है वो निजानंदी होता है मतलब खुद के ही मौज आनंद में रहता है. Some kids can't speak, but when broken color is given, they can express themselves by drawing straight, slant, sleeping lines, by drawing circles, which glitter different shapes of art. All these shapes are drawn on their own. मीन्स कि जो बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा है उस बच्चे के हाथ में अगर आप रंगीन चौक के टुकड़े भी दे दो ना तो वो जगत को भुला दे. इस तरह के वो कभी तो फास्ट कभी धीरे से कभी स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन क्रॉस में या फिर राउंड में ऐसे लीटे मारेगा और उससे अलग अलग शेप्स का वो सर्जन करता है. वो आकार जो होते हैं वो खुद के होते हैं. उसके सर्जन में वो अत्यंत अलौकिक आनंद फील करता है. बच्चे को कला का शिक्षण देने का मूल हेतु होती है उसकी सर्जन शक्ति, उसकी अवलोकन शक्ति और उसकी विचार शक्ति को विकसित करना होता है. The main purpose of given kids art education is to encourage their creativity. मैंने जैसे अभी आपको बताया ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन. They are free to think in their own way and express their feelings through art by thinking and creativity process and can make and learn beautiful pictures. They also get a mental satisfaction by doing this. Now, बच्चा जब मतलब खुद का जो ड्राइंग बनाता है मतलब खुद के द्वारा वो तो उस चित्र के माध्यम से वो सर्जन का आनंद लेता है. साथ ही साथ उसका मानसिक विकास का भी घड़ा होता है. आज के यांत्रिक जीवन में बाल कलाकार को कला का शिक्षण से उनके परियों की पांख मिली है. इसमें बोला है ना कि इन टूडेज मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ चाइल्ड आर्ट एजुकेशन इट गिव्स अ फ्रीडम टू डू आर्ट इन देयर ओन वे. They learn an important lesson by thinking process. They understand in their own about the likes and dislikes to give a good knowledge of beautiful and creative art, colors, shapes and points. To beautify your drawing, it is a very important to color what is been drawn. मतलब कि विचारों से उसके सर्जन में उसको सौंदर्य का पाठ सीखने मिलता है. क्या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा उसकी समझ उसको प्राप्त होती है. बच्चे को रूपरस कला का शिक्षण देने के लिए कला के मुख्य अंग से उसको परिचित कराना पड़ता है. चित्रकला जो होती है उसमें रेखा होती है, रंग, आकार, उसका अवकाश, जो पॉइंट्स होते हैं वो मूलभूत तत्व से बनी हुई होती है. चित्रांकन के लिए रेखा तथा उसके चौकस जो मतलब जो भाव होते हैं और रूप और रंग की जरूरत होती है. तो सबसे पहले अपने देखते हैं लाइन. मतलब कला के विवेचन के अंदर लाइन देखते हैं. पहले लाइन का क्या महत्व है पिक्चर्स ड्राइंग के अंदर. इन स्टडी ऑफ आर्ट लाइन इज वेरी एक्सक्लूसिव. ड्राइंग और लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ पिक्चर्स. मतलब कि चित्र के सर्जन की प्रक्रिया में रेखा का महत्व अनन्य है. रेखांकन ये रूपक कला का महत्व का अंग माना गया है. इसीलिए रेखा के गुणधर्म और लाक्षणिकता जानना अतिशय जरूरी होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ अ लाइन. फॉर एन आर्टिस्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स. लाइन इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग अ लाइन्स. मतलब कि रेखा कलाकार की अभिव्यक्ति का एक महत्व का साधन माना गया है. चित्रकला का एक अंग ऐसे अलग अलग पॉइंट्स के जोड़ने से जो रेखा का सर्जन होता है उसकी बात की गई है कि रेखा मतलब लाइन जो होती है तो डिफरेंट शेप्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लाइन. विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स डिफरेंट ड्राइंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड. इट इज़ वन डायमेंशनल एंड कैन वेरी इन विथ डायरेक्शन एंड लेंथ. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन विच गिव अ डिफरेंट मीनिंग्स. मतलब कि
रेखा द्वारा जो मानव हृदय की जो फीलिंग्स होती हैं उसके द्वारा जो आकारों का सर्जन होता है, और ये आकारों के द्वारा चित्र का सर्जन होता है। रेखा के सर्जन से ही उसके जो आकार और आकृति बनती हैं, उसके चित्र में उसकी जो बात की है कि उसके अंदर विड्थ, डायरेक्शन एंड लेंथ होती है, और उसके रेखा के अंदर अलग अलग प्रकार या अलग अलग भावों का सूचन करती है। तो उसमें अपने फर्स्ट नंबर का देखेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी वाली जो लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो वर्टिकल line displays precedence and stability. It displays calm, cool, and humor. If in a picture more of vertical lines are used, then you can see motion. Example: a telephone, thunder, pillar, tall tower, standing soldier, tall trees, multi-level buildings, etc. जो स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन जो बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन ही मीन्स वर्टिकल लाइन होती है। वो लाइन अड़गता बताती है, स्थिरता और गतिहीनता दिखाती है। उसके लाइन का जो भाव होता है वो शांत होता है। चित्रकृति में सबसे ज़्यादा अगर जो लाइन यूज़ होती हो तो वो है स्टैंडिंग लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन का यूज़ ज़्यादा होता है। ये गतिहीनता देखने मिलती है। उसके एग्जाम्पल याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आते हैं कि ये मतलब समझो स्टैंडिंग टॉल सोल्जर है या फिर पिलर या टॉल टावर है, वो किस लाइन से रिलेटेड है। तो अपने बोल सकते हैं कि वर्टिकल लाइन, टॉल ट्रीज, मल्टी लेवल बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो बच्चों आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये एग्जांपल्स होते हैं, किस लाइन से रिलेटेड है ये एग्जांपल्स, या ये लाइन से रिलेटेड कौन सा एग्जांपल इसको मतलब लागू पड़ेगा, तो वो मतलब आपको याद रखना है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जिसको स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। अब स्लीपिंग लाइन डिस्प्लेज द काम एंड कूल ह्यूमर। हॉरिजॉन्टल लाइन्स suggest a feeling of a rest or repose because objects parallel to the earth are at rest। मतलब कि जो आड़ी रेखा बोलते हैं उसको आराम और शांत का भाव दर्शाती है। यह रेखा निस्तेज और निष्क्रियता का सूचन करती है। इसके जो एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, स्लीपिंग मैन और एनिमल, ए थिंग लेइंग ऑन द फ्लोर, ट्री फॉलन ऑन द फ्लोर, या हॉरिजन। मतलब कि इसके एग्जाम्पल में आते हैं जो ज़मीन पे गिरी हुई कुछ भी चीज़ होती है, ज़मीन पे गिरी हुई कोई भी चीज़, वो जो लाइन बताती है कि सोया हुआ इंसान है या कोई जानवर, या ज़मीन पे गिरा हुआ पेड़ है या क्षितिज रेखा है, वो सब हॉरिजॉन्टल लाइन के एग्जाम्पल हैं। अब आती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मतलब त्रासी रेखा भी बोल सकते हैं उसको, क्रॉस रेखा जो होते हैं। Slanting lines convey the feeling of movement. Objects in a diagonal position are unstable because they are neither horizontal nor vertical. They are already about to fall or in the motion. Example: running child, running deer, flying bird, etc. मतलब जो स्लैंटिंग लाइन होती है, जो क्रॉस में जो बोलते हैं, त्रासी रेखा भी बोल सकते हैं उसको, तो वो क्या बताती है, हलन चलन और गति का सूचन करती है ये रेखा। इंसान और जानवरों के अंदर जो हलन चलन आपको दिखाना है तो इस रेखा का यूज़ करना होगा। और उसके लिए एग्जाम्पल भी आपको बच्चों याद रखना है। रनिंग चाइल्ड होता है, या रनिंग डियर होता है, या फ्लाइंग बर्ड होता है, तो उसमें कौन सी लाइन यूज़ होगी, स्लैंटिंग लाइन। अब नेक्स्ट नंबर 4, वेवी लाइन। द लाइन विच इज सीन इन द रिवर इज नॉन एज वेव लाइन। Wave lines express the feelings of motion, rhyme, mellowness and softness. Example: a snake moving in the ground, waves seen in the river and the sea। मतलब कि बच्चों ये जो लाइन है 4 नंबर की वेव लाइन है। वेव लाइन मतलब वमल युक्त रेखा भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में जब जो वेव्स आते हैं पानी के, उसमें किस तरह के वेव्स होते हैं, तो उसको वेव लाइन बोली गई है। तो जो रेखा बनती है उसको वेव लाइन बोलते हैं। ये वेव लाइन क्या दिखाती है, मंद गति, एकदम धीमी गति, ताल, लय, मधुरता और कोमलता का सूचन करती है। और उसके एग्जाम्पल याद रखना बच्चों कि उसके एग्जाम्पल में आते हैं स्नैक। स्नैक देखा होगा आप लोगों ने, चलता हुआ कैसे चलता है, एकदम वेव्स लाइन में।
मूविंग इन द ग्राउंड, वेव सीन इन द रिवर एंड सी, मतलब जमीन पे सिरकता हुआ जो सांप होता है, नदी या समुद्र की लहरें होती है। नंबर 5, क्रिस क्रॉस लाइन। क्रिस क्रॉस लाइन जो होती है, दिस लाइन कॉन्वेज फीलिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, एक्सीडेंट्स इन डेबरीज। मतलब कि ये जो लाइन होती है क्रिस क्रॉस लाइन, ये रेखा जो होती है अव्यवस्था और अपने को कन्फ्यूज़न या अनियमितता या मस्ती का वो सूचन करती है। उसके एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट सीन या डेबरीज। मीन्स कि भूकंप जो होता है या अकस्मात का जो दृश्य होता है या गिरा हुआ सामान जो होता है, मकान का जो होता है गिरा हुआ सब टूटा फूटा सामान, तो उसके लिए ये क्रिस क्रॉस लाइन होती है। अब नंबर 6 आती है ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन, अभी आपको ब्रोकन लाइन टेल अस अबाउट अ मोशन, इट गिव्स अ फीलिंग अबाउट अ डेंजर सीवियरिंग इनसिक्योरिटी। एग्जाम्पल, दिस लाइन इज यूज्ड इन ट्रेन, फ्लाइंग एरोप्लेन, मूविंग कार एंड वाटर सीन इन अ ट्रांसपेरेंट वेशर। अब ब्रोकन लाइन होती है, ब्रोकन लाइन मतलब कैसी लाइन होती है, ऐसी लाइन, ठीक है, तो इसको ब्रोकन लाइन बोलते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ जो होता है ब्रोकन लाइन का वो होती है मतलब गति का सूचन करती है। वो रेखा भय होती है कम, फिर कंपना होता है, ध्वनि कंपन, ध्रुजारी जो होती है, या असलामती का सूचन करती है। इस रेखा के एग्जाम्पल में आ सकती है बारिश, आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन, फिर कोई भी व्हीकल जो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो, या फिर जो ट्रांसपेरेंट वेसल मतलब बर्तन होता है उसमें पानी दिखाने के लिए ये वाली रेखा का यूज़ करते हैं। मैं फिर से आपको ये वाली रेखा बता देती हूँ। ब्रोकन लाइन किस तरह की होती है, तो ये इसको ब्रोकन लाइन बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो लाइन आप लोग पढ़ चुके हो, क्रिस क्रॉस लाइन। तो क्रिस क्रॉस लाइन किस तरह होती है, ऐसे, ये सब क्रिस क्रॉस लाइन का एग्जाम्पल है, ओके। अब क्रिस क्रॉस लाइन देखिए आप लोगों ने, वेवी लाइन, तो वेवी लाइन किस तरह होती है, ऐसे, ये वेवी लाइंस, ओके। अब नंबर जो होती है स्लैंटिंग लाइन, हाँ, स्लैंटिंग लाइन मतलब इस तरह की लाइन होती है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर थी जो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह की लाइन। और फर्स्ट नंबर की जो अपनी जो लाइन थी वो इस तरह की लाइन थी, स्टैंडिंग लाइन थी, ओके। अब अपने आए थे थिन लाइन के ऊपर 7 नंबर। तो थिन लाइन मीन्स थिन लाइन डिस्प्लेज अ फोर्स, स्टैंड, लिमिट, आउटस्कर्ट्स ऑफ मैप। एग्जाम्पल, थिन लाइन इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रेंथ ऑफ अ बर्ड। मतलब जो ये पतली रेखा बोलते हैं इसको, थिन लाइन मतलब पतली रेखा, एकदम पतली रेखा होती है उसकी, उसका जो रेखा के अंदर जो ताकत बल हो बोलते हैं, और जो लिमिट होती है वो नक्शा की सरहद दिखाती है, इसलिए रेखा का यूज़ कहाँ पर होता है। फिर से बताती हूँ, फोर्स मतलब बल जो होता है ना, एक प्रकार की ताकत, और उसकी स्ट्रेंथ, लिमिट, मर्यादा बोलते हैं, या आउटस्कर्ट्स ऑफ मैप मतलब नक्शा के अंदर सरहद, बॉर्डर दिखाने के लिए वाली रेखा यूज होती है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना कि द थिन लाइन इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रेंथ ऑफ द बर्ड, मतलब ये वाली जो रेखा है ये बर्ड मतलब जो पंछी है उसकी ताकत दिखाने के लिए वाली रेखा यूज होती है। अब आती है थिक लाइन की बारी। थिक लाइन मतलब जो मोटी वाली लाइन होती है, ठीक है, ये देखो ये लाइन है, ये कैसी है, थिक लाइन बोलेंगे इसको, ये थिक लाइन है, और ये है थिन लाइन, सॉरी, ये होती है थिन लाइन। तो अब थिक लाइन डिस्प्लेस द फीलिंग ऑफ लेजीनेस एंड ऑब्सिटी। दिस लाइन इज सीन इन अ ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग एंड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो थिक लाइन यानी जो झाड़ी रेखा बोलते हैं, एक तरफ झाड़ी रेखा यानी जो मोटी वाली रेखा होती है वो क्या बोलते हैं, स्थूलता, मेदस्वीता, आलस और घनता दिखाती है। ये आलसी इंसान के और या वस्तु की घनता दर्शाने के लिए वाली रेखा का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स।